We are going to start with the digestion and absorption. So let's start with the nutrition. Nutrition. It is the sum total of all activities by which one obtains nutrients required for growth, repair, and regeneration. So that is called as nutrition. And the chemicals or the food we intake is called as nutrient. The chemicals intake for this constitute food, or we call them as nutrients. हाँ जी, तो as we see कि food जो है वो हमारा one of the basic requirement है. Food is of two types. One is called as approximate principles of the food. And second is called as the protective principles of the food. Of the food. So what is the protective principles and what are the proximate principles of the food? The proximate principles क्या हुए? Good morning, ma'am. Good morning. They form the bulk of the food. ये हमारा bulk of the food बनाते हैं. They provide energy. मैम ये अभी यहीं से स्टार्ट हुआ है? हाँ जी. They Okay. provide energy and ये energy provide करते हैं और they form major part of our dry weight. Dry weight. Protective principles, they do not provide energy, but required for metabolic processes. मतलब कि अगर एनर्जी भी लेनी है तो मेटाबॉलिज्म तो चाहिए. तो मेटाबॉलिज्म के लिए आपको चाहिए प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द फूड. तो प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स ऑफ द फूड एंड द प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द फूड. तो प्रॉक्सिमेट और प्रोटेक्टिव में क्या फर्क हुआ कि जो हमें एनर्जी दे रहे हैं वो हमारे हो गए प्रॉक्सिमेट, हमारा बल्क ऑफ वेट बना रहे हैं. जो हमें मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द फूड. तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है? प्रॉक्सिमेट में फैट्स और लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. तो मेजर जो हमारे पास एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड्स हैं वो ये हैं. इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है? वी कम मिनरल्स एंड विटामिन्स. मिनरल्स एंड विटामिन्स कम इन दिस. अगर मैं इसको फूड ना कह के न्यूट्रिएंट्स की बात करूं कि भी हाँ मैं न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से डिस्कस करूं, तो ये एक तरह से हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए और ये एक तरह से हमारे क्या हो गए? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए. मतलब इफ आई फॉलो द क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स तो ये वाली क्लासिफिकेशन उसके लिए हमारे पास आ गई. सो दिस इज योर प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स ऑफ द फूड एंड देन वी हैव द प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द फूड. तो ये हमारे पास दो मेजर फॉर्म्स आ गए. ओके, another component which is one of the basic component of the food और जिसके बगैर काम नहीं हो सकता, that is water.
water form bulk of our body weight, and one of the important component of the food. क्यों? जो water है, water provides medium for all reactions to occur. Provide medium for all chemical reactions to occur in the body. तो बॉडी में जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शंस होनी है वो सारी किसकी वजह से होनी है? वो वाटर की वजह से ही होनी है. So this is our, some of the introduction. What is nutrition? Sum total of all activities or all processes by which we obtain nutrients required for growth, repair, and regeneration. And the chemicals intake for this constitute food or nutrients. Food हमारी basic requirement है और food को हम basically दो हिस्सों में बांट सकते हैं depending upon हमें requirement क्या और हमारे लिए क्या काम करता है. That is proximate principles of the food and the protective principles of the food. So we can take it another classification, macronutrients and micronutrients. Now, अगर हम बात करें न्यूट्रिशन के लिए हमने बात करी कि स्टेप्स हैं कि सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल एक्टिविटीज. सो व्हाट आर दीज केमिकल एक्टिविटीज? तो स्टेप्स ऑफ द होलोजोइक न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं, होलोजोइक का मतलब होता है समथिंग विच इज टेकन फ्रॉम द माउथ, चाहे वो टेम्पररी चाहे वो परमानेंट है, बस सॉलिड इनटेक जहां पे हो रहा है. स्टेप्स फॉर एनिमल न्यूट्रिशन. सो these are: number 1 is the ingestion, second is digestion, third is absorption, fourth is assimilation, and fifth is egestion. What is ingestion? Intake of the food is called as ingestion. Breakdown of food, complex food, into simple one, that is mechanical as well as chemical activity. This is digestion. Then transport of the nutrients from the intestine to the blood is called as absorption. Utilization of that food is called assimilation, and removal of undigested food is called as egestion. So whenever we come to the details of these, we will write their definitions there only. तो अभी यहाँ पे हम simple steps लिख रहे हैं. Okay, so now I am directly starting with the आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. उससे पहले बस एक छोटा सा बात कर लेते हैं कि जब हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं, डाइजेशन दो तरह से हो सकती है. वन इज कॉल्ड एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन, अदर इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन. जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, this takes place within the cell. Within the cell, जैसे हम पढ़ते हैं phagocytosis by the macrophages, और अमीबा जैसे इनटेक कर रहा है. So that is intracellular digestion. For example, as in unicellular organisms. Second आपने एग्जाम्पल लिया सच एज अमीबा. मैंने दूसरी एग्जाम्पल ले ली यहाँ पे फैगोसिटिक एक्टिविटी. बाय मैक्रोफाजेस. ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन की. Extracellular digestion, or we can call it as intercellular digestion, this takes place
outside the cells. This takes place outside the cells. तो ये cells के बाहर हो रही है. Now यहाँ पे अगर ये सेल से बाहर हो रही है तो इसमें किस तरह से काम होगा? एज एग्जाम्पल, जैसे हमारे में फूड गट में डाइजेस्ट होता है. एग्जाम्पल, डाइजेशन ऑफ फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की एग्जाम्पल है. यहाँ पे क्या हुआ कि दिस इज योर अमीबा, लेट्स से सम फूड पार्टिकल आया, अमीबा ने उसको इन्वेजिनेट किया ऐसे और वो अंदर आ गया. नाउ अब लाइसोसोम्स आएंगे और लाइसोसोम्स इसके साथ कंबाइन करेंगे और इसकी डाइजेशन हो जाएगी. लेकिन जो ये वाला पार्ट है, अगर हम ये बात करें तो ये हमारी गट है, ये गट की लाइनिंग है. यहाँ पे कोई फूड आ रहा है हमारा, ये हमारा फूड आया. नाउ एंजाइम्स जो हैं वो इसके ऊपर डल रहे हैं, तो एंजाइम्स आर poured over it and then it is broken down. This is called extracellular digestion. So अगर हम बात करें कि भी दोनों में से बेनिफिशियल कौन सी है, तो आपके पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, दिस इज मोर बेनिफिशियल. एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन has advantage. कैसे? Larger food particles can be taken. Can be taken. Number two, division of labor is there. Very, very important. Division of labor. यहाँ पे सारे काम एक ही सेल के अंदर हो रहे हैं और पूरा सेल ही अपने पूरे काम कर रहा है. लेकिन अगर इधर देखें तो अगर आप गट की बात करो तो बकल कैविटी का काम है च्यू करना, इसोफेगस का काम है ट्रांसपोर्ट करना, स्टमक का काम है स्टोरेज एंड सम पार्ट ऑफ डाइजेशन, एंड जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन पे आते हैं तो वहां पे उसका काम हो गया डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. तो डिविजन ऑफ लेबर हो गया जिसकी वजह से मोर एफिशिएंसी इज देयर. अगर सारा काम खुद ही करेंगे तो एफिशिएंसी कम हो जाती है. सो मोर एफिशिएंसी इज प्रेजेंट. तो हमारे पास एफिशिएंसी ज्यादा यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर की डाइजेशन की ज्यादा होगी. और इसी वजह से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे एवोल्यूशन के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन आई. इंट्रा सिर्फ सेलुलर लेवल पे ही है, जैसे कि WBCs के अंदर अगर फैगोसाइटोसिस है या फिर मैक्रोफेजेस जो एक्टिविटी कर रहे हैं, बस वहीं तक रह गया. व्हेन वी कम टू हायर ऑर्गेनिजम्स. ओके, so now we are going to start with the human digestive system directly. So human digestive system, it consists of two parts: digestive tract and digestive glands. So digestive tract है और digestive gland है. Now digestive tract, first part is digestive tract. So it starts with the, let's say first I'll just explain and then उसके साथ लिखना शुरू करें. ये हमारे पास हमारी बकल कैविटी, this is mouth. So mouth leads to buccal cavity. Now this is your nasal cavity और ये रही आपकी buccal cavity. Now अगर हम यहाँ बात करें, बस इसको let me little bigger.
This is buccal cavity और this is location of the tongue. ये और ये आपका लोकेशन है पैलेट का. This is let's say your hard palate and ये आपका soft palate. और ये आपका रास्ता ऊपर से आ रहा है. So this is like this. ये ना अगर हम यहां देखें तो ये आपके पास इस तरह से आ गया और ये आपकी इंटरनल नॉस्ट्रल और ये आपकी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल. दिस पार्ट इज योर, ये हिस्सा आपका नेजल ट्रैक्ट है, नेजल कैविटी एंड रेस्ट पार्ट इज योर बकल कैविटी. ना बकल कैविटी में जो बिल्कुल यहां पे इंटरनल नॉस्ट्रल्स के बिल्कुल पीछे आ रहा है, ये आपका नेजोफैरिंक्स है. This is your nasopharynx. So this is just behind the internal nostril. So that means यहां से सिर्फ आपकी एयर ही पास होने वाली है. एंड यहां पे ही इसी हिस्से में आपके पास ये देखिए, दिस इज योर ईयर और आपकी ईयर की यूस्टेचियन ट्यूब्स भी यहीं खुल रही हैं. दिस पार्ट जस्ट बिहाइंड योर buccal cavity, this is your oropharynx. This is your oropharynx and इसी का एक्सटेंशन जो आगे आ रहा है ये यहां पे है, नेक रीजन. इस तरह से एक फ्लैप है और ये हमारा हो गया आपका लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स और वॉइस बॉक्स के साथ ये नीचे आपका ट्रैकिया. और ये जो पीछे वाली हम बना रहे हैं, दिस इज योर इसोफेगस. हियर इज स्फिंक्टर आल्सो और ये भी आपका यहाँ पे ओके. सो दिस इज योर लैरिंक्स, ये ट्रैकिया और ये पीछे आपकी इसोफेगस आ गई. ये पार्ट इज योर laryngopharynx. This is your larynx. This is trachea और ये रहा जी आपका इसोफेगस. ये हो गया. तो जब हम बात कर रहे हैं कि आपका, और अगर हम आगे चलें तो थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं. And then we have it sharply bends and open into a J-shaped stomach. It's just a diagrammatic view जो हम बना रहे हैं यहाँ पे, और not very precise, but of course it is, you can able to understand. और ये यहाँ पे डायफ्राम को ऐसे क्रॉस कर रही है. तो डाइजेस्टिव इसोफेगस से पैरेलल चलते हैं. बिल्कुल हाँ जी. वेंट्रल आपका, आप देखिए जिस साइड माउथ है वो वेंट्रल हो गया, दूसरी साइड आपका डॉर्सल हो गया. तो ट्रैकिया इज वेंट्रल टू द इसोफेगस, और अगर मैं बोलूं तो इसोफेगस इज डॉर्सल. ओके. तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द माउथ. माउथ क्या है? स्लिट लाइक ओपनिंग है and it is bounded by lips. Upper lip labrum, lower lip labium. I am just restricting myself just near the NCERT. कुछ टर्म्स हम यूज करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं कराएंगे, बिकॉज आप यहाँ पे जितना आपको डिटेल रिक्वायर्ड है उतना और प्लस थोड़ा सा और, इससे ज्यादा हम यहाँ पे नहीं करेंगे at your level. So they are slit like opening bounded by lips. Then mouth leads to, next is buccal cavity, or we call it as oral cavity. Now when you open your mouth, तो ये स्पेस जो आपको दिख रहा है वो सारा आपका बकल कैविटी है. तो बकल कैविटी को मैं किस तरह से डिफाइन करूंगी? मैं इसको 3 हिस्सों में बांट लेती हूँ.
बकल कैविटी का रूफ, बकल कैविटी का फ्लोर और बकल कैविटी की साइड्स। तो इस तरह से I'll discuss. So mouth lead into oral cavity or buccal cavity. Now, if I divide the buccal cavity into three parts, उसका रूफ, उसका फ्लोर और उसका साइड्स, तो ये रूफ हो गई, देन आई हैव अ फ्लोर और उसकी साइड्स। तो मैं तीन हिस्सों में उसको डिवाइड करके आपसे बात करूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूफ ऑफ बकल कैविटी की। इट्स रूफ इज फॉर्म्ड बाय पैलेट, बट आई मस्ट टेल यू इट्स नॉट ओनली पैलेट, इट इज अपर जाव का पार्ट भी होता है इसके अंदर। सो अपर जाव का, जब आप इस तरह से अपने दांतों के पीछे अगर आप टच करें तो आपको रिजेस सी फील होती है, वो बेसिकली दैट रिजेस इज नॉट ऑफ पैलेट। हम पैलेट बोल तो रहे हैं, बट एक्चुअली ये पार्ट आपका जो पैलेट है उसमें आपका ये पार्ट अपर जॉ की वजह से बन रहा है। इट इज फॉर्म बाय पैलेट, एंटीरियर हार्ड पैलेट, hard palate. This hard palate anteriorly bear ridges. इनको हम पैलेंटाइन रूगी कहते हैं, पैलेंटाइन रूगी। हार्ड पैलेट हमें विजिबल होता है? बिल्कुल, आप टच करें, जो ये टच करे वो हार्ड पैलेट ही ऊपर, और क्या है। और जो सॉफ्ट वाला है वो इसके पीछे चला जाता है? हाँ, जो पीछे है आपको अभी आई वो जस्ट विजिबल एक्सप्लेन। नहीं होगा। हाँ, आई एक्सप्लेन। अभी आप सिर्फ मैं लिख रही हूँ, पैलेंटाइन रूगी, इसका काम है दे हेल्प टू होल्ड द फूड पार्टिकल्स टुगेदर। जब आप च्यू करते हो तो ये रिजेस के अंदर आपके ये फूड पार्टिकल्स वहां पे स्टिक कर जाते हैं। सो हेल्प टू होल्ड द फूड पार्टिकल्स। ये एंटीरियर रिजेस है। देन वी हैव एंटीरियरली बियर रिजेस। तो एंटीरियरली इसमें रिजेस पड़ी हुई हैं आपकी, और पोस्टीरियर सॉफ्ट पैलेट। इसका जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है, इट हैंग्स वर्टिकली, हैंग्स वर्टिकली, और इसको कहते हैं यूवुला। यूवुला। लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन ऑल दिस, उसके बाद हम इसकी बाकी की डिटेल करेंगे। ये नाउ अगर आप यहां देखें तो दिस इज यूवुला, ये यूवुला है। जब आप खाना खा रहे हो तो यूवुला पीछे को स्विंग करता है। When we try to swallow, तो ये यूवुला जो ये वाला आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज ओके, ये यूवुला, ये यूवुला जो है वो पीछे की तरफ आपका स्विंग कर जाए और आपके इंटरनल नेयर्स को क्लोज कर लेता है। सो इसीलिए हम खाना खाते हुए भी ऑलवेज से कि भी बोलो मत, ताकि आपकी जब हम बात कर रहे हैं तो ये यूवुला भी वाइब्रेट कर रहा है ना, तो उस टाइम पे तो खाना भी खा रहे हो और बोल भी रहे हो साथ साथ, तो आपकी देयर आर चांसेस। जैसे अगर आप ये देखो कि कभी बच्चे बड़ी वो कोक वगैरह कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एकदम से लेते हैं, तो सम टाइम इट कम्स फ्रॉम योर नोज, तो वो यूवुला क्लोज नहीं होता, तो वो नाक से बाहर आ जाता है। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो ये आपके पास, अब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मेरा हाथ अगर आप विजिबली देख रहे हैं, तो सपोज करो ये जो आपका हाथ है, अगर इसी को बकल कैविटी की रूफ मान के चलूं, तो लेट मी सी। फर्स्ट आप ये देखिए, पहले तो आप थोड़ा सा सिमेट्री समझिए बॉडी की। सिमेट्री क्या होती है, एक रफली समझा रही हूं, जिस साइड आपका हेड होता है, जो साइड आपकी हेड की है, और ये आपका रेस्ट ऑफ द ट्रंक, और ये, तो ये आपका एंटीरियर साइड है और ये आपका पोस्टीरियर साइड है। तो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ जा रहा है। ओके, एंटीरियर पोस्टीरियर, हेड वाली साइड एंटीरियर, और टू हेड से नीचे जा रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर। अच्छा, ये बॉडी का मेन एक्सिस है आपका, दिस इज योर मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। तो जो चीज इसकी साइड पे आ गई वो आपका लिटरल पार्ट होगी, तो इसका मतलब लिम्ब्स हमारे लिटरल है। देन ये हमारे पास, अगर हम अपनी बकल कैविटी इस तरह से बना रहे हैं, हेड बना रहे हैं, तो हेड में जिस साइड माउथ है, ऑलवेज
जिस साइड माउथ है वो साइड वेंट्रल और माउथ का ऑपोजिट डॉर्सल। इसीलिए हम बोलते हैं हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो डॉर्सल है, माउथ वेंट्रल है। जैसे हमने पिट्यूटरी बताई तो वो वेंट्रल साइड पे आ गई, लेकिन अगर हम ऑप्टिक लोब्स की बात कर रहे हैं तो वो डॉर्सल साइड पे चला गया। तो हमारा जो गट है, अगर हम बात करें, ये हमारे नोज और ये मेरी बकल कैविटी का पैलेट, ठीक है। ये एंटीरियर हार्ड पैलेट और ये समझो सॉफ्ट पैलेट है जो मस्कुलर है, और उसी का पीछे का पार्ट। अब देखो इस एंटीरियर में ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर। अगर मैं पोस्टीरियर पैलेट की बात करती हूँ तो ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? पहले मुझे बताओ। दिस इज योर हार्ड पैलेट, दिस इज योर सॉफ्ट पैलेट। हाँ जी, यस प्लीज। इस हार्ड Yes. पैलेट में भी ये पार्ट एंटीरियर और ये पार्ट Posterior. और ये पोस्टीरियर पार्ट में ये पार्ट एंटीरियर और ये पार्ट Posterior. One more definition we use, what is proximal and what is distal? जहां से चीज शुरू होती है। Suppose if I say this is my arm, तो मेरी आर्म इस शोल्डर से शुरू हुई तो ये proximal part of my arm है, और ये वाला हिस्सा distal part of my arm है। If I say my hand, तो हैंड में ये पार्ट proximal है, ये पार्ट distal है। If I come to finger, तो ये पार्ट proximal है, ये पार्ट distal है। If I come even to nail, तो ये पार्ट proximal है और ये पार्ट distal है। Is it clear or not clear? Oh yes मैम। अच्छा, तो आप ये देखिए, अगर मैं स्टमक की बात करती हूँ तो ये मेरा proximal पार्ट हो गया, ये मेरा distal पार्ट हो गया। इधर ये proximal हो गया, इधर ये distal हो गया, इधर ये proximal हो गया, ये distal हो गया। Yes or no? Yes. हाँ जी, ओके। तो हमारे पास ये एंटीरियर हार्ड पैलेट, इस एंटीरियर हार्ड पैलेट में यहाँ पे आपके पास ये देखिए, दिस इज योर पैलेट। इस पैलेट में यहाँ पे, यहाँ तक समझ लो ये बोन है सारा, दिस आर पैलेंटाइन बोन्स, और ये पार्ट आपका अपर जॉ का है। तो अपर जॉ के इस पार्ट में यहाँ पे आपको र्यूगी नजर आते हैं, ऐसे रिजेस होती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप वो रोड पे देखते हो रंबल्ड स्ट्राइप्स होती हैं, देखा है जहाँ पे रोड पे जाते होते ऐसे ऐसे करके बनाया हुआ होता है बीच में, Yes, ma'am. वहां पे क्या होता है, आपकी स्पीड तब तब करके स्लो हो जाती है। तो इस तरह से जब आप फूड खा रहे हो तो इन रिजेस के बीच में वो फूड स्टिक कर जाता है। तो ये पैलेंटाइन र्यूगी है, और ये आपकी पैलेंटाइन बोन्स है, जो स्कल की पैलेंटाइन बोन्स है। और ये पीछे आपके पास आ गया आपका फ्लैशी पार्ट, आई मीन मस्कुलर पार्ट, ये आपकी सॉफ्ट पैलेट है। और सॉफ्ट पैलेट ऐसे बीच में हैंग कर रही है, तभी मैंने वर्ड लिखा पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट हैंगिंग, और ये आपकी नीचे का हिस्सा। तो ये आपका नीचे का हिस्सा हो गया, तो फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। तो पैलेट, एंटीरियर पैलेट में हार्ड पैलेट इज फॉर्म बाय बोन्स, posterior part is muscular and fleshy। तो posterior most part, जो posterior palate है आपकी, ये आपकी soft है और ये muscular है, connective tissue muscle सारे ये भरे हुए हैं इसमें। अच्छा, ये आपका नीचे का फ्लोर ऑफ बकल कैविटी है। अब इस फ्लोर ऑफ बकल कैविटी में ये हमारे पास टंग पड़ी है, ये देखो। I don't say floor of the buccal cavity is formed by tongue. No, no, no. I will say floor of the buccal cavity is formed by bone. I say the floor of the buccal cavity is occupied by the tongue. आपको ये बात दोनों में समझ आई? ऊपर मैंने क्या वर्ड बोला है? Formed. नीचे क्या बोल रही हूँ? Occupied. क्लियर है बलविंदर? Yes, ma'am. अच्छा, सो आपकी जो टंग है वो पोस्टीरियरली अटैच्ड है, यहाँ मसल्स हायर्ड बोन के साथ अटैचमेंट होती है, और ये आपकी टंग, और ये नीचे आपका बेस, बेस के साथ ये अटैचमेंट आपका है। दिस इज कॉल्ड एज अ लिंगुअल फ्रेनुलम। ये आपका लिंगुअल फ्रेनुलम है, आप सिंपली फ्रेनुलम भी बोल सकते हो। फ्रेनुलम इज अ फोल्ड विच इज अटैचिंग। सो लिंगुअल फ्रेनुलम का मतलब क्या हुआ कि जो टंग को अटैच कर रहा है। तो हमारी टंग किस तरह से है? इफ दिस इज माय फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, टंग इज अटैच्ड यहाँ पे बेस पे, और आगे से फ्री है और पोस्टीरियरली अटैच है। तो पोस्टीरियरली अटैच, एंटीरियरली फ्री, बेस से भी अटैच है। कभी आपने सोचा अगर किसी की बेस से अटैच ना होती तो क्या होता? आपकी टंग ही रोल करके पीछे चली जाए। Tongue roller. टंग रोल करके पीछे चली जाती और पीछे तो आपकी ये ओपनिंग्स को ही ब्लॉक कर देती है ना।
जो टंग रोलिंग कंडीशन है वो टंग फिर रोलिंग कैसे ये है वर्क करती है? ऐसे, ये जेनेटिकली डिसाइडेड है. सम पीपल कैन रोल द टंग, दिस इज अगेन जेनेटिकली फैक्टर्स. ये डोमिनेंट जीन है ये. ये Okay. डोमिनेंट है? रोलिंग इज डोमिनेंट. तो ये आपके पास आ गया आपका टंग. तो दिस इज द टंग. ओके. अच्छा, तो अब जरा टंग की बात करें. साइड से तो अभी आपको मैंने ये बता दिया. टंग को अगर सामने से दें तो अब मैं बात आती हूँ फ्लोर पे. लेट मी टॉक अबाउट द फ्लोर. सो फ्लोर is occupied by, I don't say formed by bone है, occupied by tongue, and even the floor की sides occupied by jaws. Occupied by tongue. tongue कैसी है? tongue is musculosensory organ. ये मस्कुलर भी है, सेंसरी भी है, पिंकिश है, ओवल है, एंड बियर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गलती मत करना. पेपिली ऑन द अपर सरफेस. Papillae on the upper surface. Some papillae contain taste buds. ये देखिए, tongue attached to the floor of buccal cavity bilingual frenulum. And attached posteriorly by muscles free anteriorly. And I hope अब आपको anterior posterior का symmetry समझ आ गया होगा. तो ये आपके पास, this is our tongue. Tongue is oval or something like this. I'm sorry. I think so. Something went wrong with the thinking, but anyway, we will continue. तो ये हमारे पास थोड़ा सा हमें बैक जाना पड़ेगा उसके लिए. ये हमारे पास फ्लोर हो गया और फ्लोर के ऊपर दिस इज आवर टंग. The floor of buccal cavity, it is occupied by tongue. Tongue कैसी है? It is pinkish, oval, musculosensory, sensory. Beer, papillae on upper surface and some of papillae bear taste buds. Then tongue attached to the floor of buccal cavity bilingual frenulum. Frenulum is fold, lingua is tongue. Okay.
So this is our location. ये टंग है, almost like this. Now tongue beer आपके पास यहाँ पे अगेन ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है, पीछे एक टंग पे फोल्ड है, इससे से फोल्ड होता है। इस फोल्ड को हम सल्कस टर्मिनालिस कहते हैं। ये एक्स्ट्रा पार्ट है। दिस अ वी शेप फोल्ड दैट इज कॉल्ड एज सल्कस टर्मिनालिस। इसका क्या फंक्शन होता है सल्कस टर्मिनालिस का? ये एक ऐसा फोल्ड है जो टंग के ओरल पार्ट को और उसके फेरेंजियल पार्ट को अलग अलग कर रहा है। ये टंग का फेरेंजियल पार्ट है और ये टंग का ओरल पार्ट है। आपके पेपिली ओरल पे हैं और फेरेंजियल पे टॉन्सिल्स हैं। ये टॉन्सिल्स हैं। सो ये वी शेप फोल्ड है बीच में, ऐसे। इट्स जस्ट एन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, मैं बार बार बोल रही हूँ। ओके, इस वी शेप फोल्ड के साथ साथ यहाँ पे थोड़े बड़े बड़े पेपिली हैं। ये पेपिली आर द रे स्ट्रक्चर। थोड़ी सी आप टंग पे ऊपर कभी आप अपनी जीभ को देखेंगे तो आपको लाल लाल रंग के दाने नजर आएंगे। आप अपना मुंह पूरा खोल के अगर आप उसको मिरर के अंदर देखते हो तो पीछे आपको व्हाइट व्हाइट से ऐसे थोड़े से रे स्ट्रक्चर से नजर आते हैं। या कभी आप फिंगर डाल के टच करिए पीछे तो आपको लगेगा कि उतनी ऐसे कुछ दाने दाने से हैं। वो बेसिकली ये हैं और आपको यहाँ पे छोटे छोटे व्हाइट नजर आएंगे। ओके, तो ये आपके वैलेट पेपिली हैं। इनको सर्कम वैलेट पेपिली भी कहते हैं। वैलेट पेपिली, इस हर पेपिली के अंदर आपके पास टेस्ट बर्ड्स हैं। देयर 8 to 10 इन नंबर और इसके पास टेस्ट बर्ड्स हैं। अप्रोक्सीमेटली कोई 100 के करीब टेस्ट बर्ड्स इसके अंदर है। प्लीज, टेस्ट बर्ड इज डिफरेंट थिंग। टेस्ट बर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ सेंसरी एंड सपोर्टिंग सेल्स। और पेपिली एक ऐसा रे स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टेस्ट बर्ड्स हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे टंग में लेटरल साइड्स पे और एंटीरियर साइड्स पे, मैं ये नहीं कहती यहां नहीं है, यहां भी है, बट यहां ज्यादा है। तो ये हमारे पास है फंजी फॉर्म पेपिली। अगर आप इनको माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो ये थोड़े मशरूम से शेप के नजर आते हैं, इसीलिए हमने नाम रखा है फंजी फॉर्म। और फिर हमारे पास है सम व्हाइट कलर्ड पेपिली। ये बहुत ज्यादा है और ये पूरे फैले हुए हैं। ऑफ कोर्स आपको यहां भी नजर आएंगे, बट ये मोर आपको नजर आते हैं बीच में। These are called as filiform papilli. And they do not contain taste buds. तो फिर काम क्या है इसका? They are tactile in function. टच के लिए हैं ये। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें फंजीफॉर्म पेपिली, तो ये अप्रोक्सीमेटली 5 के करीब हमारे पास 5 टेस्ट बर्ड्स पर पेपिली है। इसके अलावा टंग के ऊपर बहुत सारी नर्व एंडिंग्स हैं, वेबर्स ग्लैंड्स हैं, म्यूकस ग्लैंड्स हैं। मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी, बट टंग हैज सो मेनी थिंग्स। मैंने पहले बोला है मस्कुलो सेंसरी ऑर्गन। तो जितना हमें रिक्वायर्ड हम उतनी ही बात करेंगे, बल्कि ये भी हमारा हम थोड़ा ज्यादा ही कर रहे हैं, बट इतना हम मुझे लगता है कि आपको थोड़ा पता होना चाहिए। सो टंग बियर पेपिली, अगर मैं बोलूं टेस्ट बर्ड्स, तो टेस्ट बर्ड्स पूरी बकल कैविटी में है। पेपिली कहाँ है? अपर सरफेस पे, लोअर सरफेस पे नहीं होते। तो ये ख्याल रखना, मैं बार बार इस चीज को एम्फेसाइज कर रही हूँ। अपर सरफेस एंड सम ऑफ देम बियर टेस्ट बर्ड्स। तो आपने देख ही लिया वैलेट और फंजी फॉर्म में है। एक चौथे पेपिली भी होते हैं, फोलिएट पेपिली, जो ऑलमोस्ट यहाँ, यानी अगर ये टंग है तो ये एंटीरियर पार्ट, ये पोस्टीरियर पार्ट, इट इज ऑन द पोस्टीरियर लेटरल पार्ट, नीचे की साइड पे। बट ये बच्चों में लाइक अडल्ट्स में नहीं होते, तो ये डीजेनरेट हो जाते हैं। सो दे आर फोलिएट पेपिली। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। फोलिएट पेपिली अडल्ट में नहीं होते हैं, तो वो डीजेनरेट हो जाते हैं। तो फ्लोर पे आप पेपिली, मेन 3 तरह के पेपिली हम बात करेंगे। पेपिली रे स्ट्रक्चर्स हैं।
contain, some of them contain taste buds. और प्लीज ये अपर सरफेस में है. वैलेट पेपिली मैम, या सर? हाँ जी. जो हमारे जैसे आपने बोला कि बकल कैविटी में सारे उसमें टेस्ट बड्स हैं, तो जो गाल है अंदर की साइड से उसके अंदर भी टेस्ट बड पड़े? हाँ जी बिल्कुल है. ये चीक पे होते हैं, यहाँ भी होते हैं, एपिग्लॉटिस पे भी हैं. ओके. सो अप्रोक्सीमेटली 10,000 टेस्ट बर्ड्स हैं हमारे यहाँ पे. Circumvallate papilla, then we have fungiform papilla, and we have filiform papilla. But there's no end to knowledge. It's very fast. एक एक ऑर्गन पूरी अगर जो एमडी कर रहे हैं तो नेचुरली वो एमडी पूरी, अगर वो ईएनटी में कर रहे हैं तो आप सोचो कितना डिटेल वो पढ़ते होंगे. हम तो सिर्फ बेस पढ़ रहे हैं. वी आर जस्ट डूइंग नॉट इवन एबीसी. तो ये समझ लो हम तो सिर्फ सिखा रहे हैं कि आपको, हाँ जी ये ए है, उसके बाद ए की आगे कितनी वर्जन्स हैं वो तो बहुत ही है. सो circumvallate papillae, they are along the, ये पीछे posterior side पे हैं, they are on posterior side. Along the fold, यानी sulcus terminalis. Eight to 10 in number, contain approximately 100 taste buds per papilla. 100 taste buds per papilla. Fungiform और ये लार्जेस्ट है. Fungiform, mushroom shaped, red colored, more along the lateral sides, and anterior sides of tongue, bear approximately 5 taste buds per papilla. Then we have filiform, white colored. They are white colored. Numerous, बहुत ज्यादा है ये. Smallest, more along the middle part of tongue, and they are tactile in function, contain no taste buds. सबसे ज्यादा भी यही है और टेस्ट बर्ड्स भी नहीं है इनमें. Tactile in function, तो फंक्शन में टेक्टाइल है. तो ये हमारे पास 3 मेजर तरह के हो गए. फोलिएट जो होते हैं, फोलिएट पैपिली not developed in human. In adults. तो ये रीजनरेट हो जाते हैं. इसके अलावा टंग contain large number of nerve endings. अदरवाइज आपको ठंडा गर्म कैसे पता लगता है? तभी पता लगेगा नर्व एंडिंग्स है. नर्व एंडिंग्स एंड इवन म्यूकस ग्लैंड्स. तो रिसेप्टर्स हैं हमारे पास. टंग जो है, देखिए टंग एक सेंस ऑर्गन है. हम कहते हैं टंग कैन टेस्ट. टंग कैसे टेस्ट? हम कहते हैं टंग टेस्ट कर रही है. एक्चुअली टेस्ट तो ब्रेन बता रहा है और दैट इज इन पैराइटल. तो टंग सिर्फ आपको टेस्ट को परसीव कर रही है और वो भेज रही है, मतलब उसके रिसेप्टर्स जो हैं वो नर्व एंडिंग्स को भेज रहे हैं, नर्व्स को भेज रहे हैं, सेंसरी नर्व फाइबर्स को टुवर्ड्स द ब्रेन. तो ब्रेन इंटरप्रेट करके बता रहा है. टंग कैन डिटेक्ट 4 different types of taste mainly. मैम, हाँ जी. जैसे हमारी बॉडी में हर जगह पे हर चीज के लिए रिसेप्टर है,
तो उसके अंदर जैसे हमारी टंग है, मतलब अगर हम डिस्टेंस वाइज देखते हैं तो वो ब्रेन के काफी क्लोज है। पर हमें जैसे अगर कोई पिन पैर में चुभती है या कहीं भी चुभती है तो पता सेम टाइम सेम ही लगता है ब्रेन को इंटरप्रेट करने में, कि मतलब हमें कोई डिफरेंस नहीं फील होता कि कोई टाइम लैग है, कि चाहे अगर वो फेस पे कोई चोट लगी है या कहीं और भी लगी है तो मतलब उसकी सेंसेशन सेम ही फील होती है। तो ऐसा होता है कि कोई टाइम लैग होता है लोकेशन वाइज की देखो ब्रेन के बेटा, इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले तो ये आप ये समझो, जितने भी आप मुझे एग्जांपल्स बता रहे हो, पिंचू भी कुछ है, ये बेसिकली वी आर रिस्पॉन्सिंग टू द रिफ्लेक्सेस। इसमें तो मोस्ट ऑफ द टाइम रिफ्लेक्स एक्शन है। तो रिफ्लेक्स एक्शन में तो आपका स्पाइनल कॉर्ड ही काम कर लेता है। पहली बात, वहीं से चीजें स्पाइनल नर्व्स के थ्रू वहीं से वापस आ रही है। अगर आपके मान लो जीभ पे कोई चीज, जैसे कई बार गर्म कॉफी पी लेते हैं, जैसे कि ये रिफ्लेक्स एक्शन है। लेकिन अगर वही दोबारा गर्म कॉफी, मतलब आपको एकदम से लगा, ये जो एकदम से आया और उसके बाद आपको गरम गरम की फीलिंग आ रही है, तो उसमें आपके रिफ्लेक्सेस दोनों इन्वॉल्व हो गए। सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस आर आल्सो देयर। बट होता क्या है कि एक्चुअली आप ये देखिए, हमने उस दिन भी किया था, हमारी जो नर्व कंडक्शन है, नर्व कंडक्शन में याद करो स्पीड ऑफ इम्पल्स 125 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेट, यानी 1 मीटर के 125 लेंथ। समझ आ रही है आपको? 1 मीटर की 125 लेंथ 1 सेकंड में कवर हो रही। तो वो टाइम, या आप ये देखिए, हम एक जनरल इंपल्स की बात कर रहे हैं, 1 सेकंड में 200 इंपल्सेस, और इट कैन बी 1 सेकंड में 1000 इंपल्सेस। तो डिपेंड करता है आपका फ्रीक्वेंसी किस लेवल पे आई, इंटेंसिटी किस लेवल पे आई है। मतलब जो आपको स्टिमुलस लगा है, कई बार स्पीड ऑफ कंडक्शन बड़ी सारी चीजों पे डिपेंड करती है, माइलिनेटेड है वो है, और आपके ये भी इस चीज पे डिपेंड करती है, आपको जो इंटेंसिटी आई है वो कितनी जोर से आई है। तो नेचुरली इंटेंसिटी, आपका एम्पलीट्यूड, बड़े सारे, और फिर आपका जो ये कई रिफ्लेक्सेस हैं। आप ये देखिए, जैसे आपने कहा हाथ पे कुछ लग गया, स्किन के पिन चुभ गया, कुछ है, उसका रिफ्लेक्स एकदम से आता है, या जो टंग से है तो उसके रिफ्लेक्सेस। तो सर्किट्स हैं डिफरेंट, और हर सर्किट की अपनी लेंथ है, उसमें स्पीड ऑफ कंडक्शन भी डिफरेंट हो जाती है। तो आपका जो लैग, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ हो सकता होता हो, बट हमें वो परसीव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि स्पीड इतनी फास्ट है कि हमारा ब्रेन अपनी ही स्पीड को परसीव नहीं कर पा रहा। अब जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं लगातार बोलती जा रही हूँ, आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैं लगातार बोल रही हूँ, तो आपको देख भी रही हूँ, लिख भी रही हूँ, मेरे ब्रेन के अंदर चल भी रहा, कितना कुछ चल रहा होगा, और आप मेरी बात सुन के आवाज भी दे रहे हैं मुझे। कैन यू जस्ट perceive the kind of the speed even in the virtual system of answering and questioning and thinking कितनी ज्यादा है? तो यस। एक्चुअली जब आपका बहुत सारे रिफ्लेक्सेस अपने ही लेवल पे, अब जैसे सपोज करो हाथ के ऊपर कोई पिन चुभा, तो एकदम से गया, तो इसका रिफ्लेक्स यहीं से कंट्रोल हुआ है। हाँ, ब्रेन को इंफॉर्मेशन जाएगी, ब्रेन भी करेगा। अगर आपकी यहाँ पे पिन चुभी है, तो यहाँ पे पिन चुभी है, तो यहाँ से जो नर्व्स जा रही हैं, तो वो अपना रिफ्लेक्स कंट्रोल कर लेंगे अपने लेवल पे। तो हर एक के अपने अपने सर्किट्स हैं, तो वो सर्किट्स जो हैं वो अपना अपना काम करी जा रहे हैं। मैं इसको ऐसे समझाती हूँ, तो कमरे का लाइट ऑन करता है, तेरे कमरे का एक पूरा सर्किट है। जब तूने कमरे की लाइट ऑन करी, तुझे एकदम से दिख गया लाइट ऑन हुई, बट तेरे कमरे की लाइट के पीछे जो तार जा रही है वो मेन सर्किट पे भी जा रही है, तो सर्किट तो वहां से भी ऑन हुआ है पुत्र। यस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। तो आप एक सर्किट पे बात कर रहे हो, बट एक्चुअली दो सर्किट काम कर रहे हैं। लैग इज देयर, लैग इज लिटिल देयर, बट हम उसको परसीव नहीं कर पा रहे क्योंकि वो फास्ट बहुत है। अगर मैं यहाँ, आप देखिए, हम क्या कहते हैं, अगर मान लो कोई कमरे में प्रॉब्लम होगी तो हम कहते हैं मेन स्विच देख क्या, कहीं वो क्या एमसीपी तो नहीं गिरा हुआ। तो एमसीपी आपका मेन स्विच है, बट उसी स्विच की वजह से आपका ये सर्किट भी तो आ रहा है। आपने तो लाइट यहाँ जलाई है ना, तो एकदम से लाइट है, बट आप देखो ना सर्किटरी तो कहाँ से आ रही है आपकी, कहाँ कनेक्टेड है आपकी। यस। ओके, सो टंग कैन डिटेक्ट 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। ये देखिए, सो आई फिनिश दिस लेक्चर यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद टीथ फिर बहुत लंबा है। तो ये ऑलमोस्ट टिप इज मेंट फॉर स्वीट, एंड देयर आर लोअर लेटरल्स। ये है आपका सॉल्ट के लिए, और यहाँ पे वी हैव अपर लेटरल्स। अपर लेटरल्स आर फॉर सार,
और ये पीछे, दिस इज मेंट फॉर बिटर। बहुत एक्चुअली 4 डिफरेंट मेन टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं। टंग को नहीं पता मीठा क्या है, टंग को नहीं पता खट्टा क्या है, टंग को नहीं पता बिटर क्या है। अगर एल्कलॉइड केमिकल है तो टंग उसको बिटर बता देगी, आई मीन ब्रेन उसको बिटर बताएगा। अगर ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जैसे ग्लूकोज है कुछ है, तो टंग उसको जो आपके उस तरह के, तो ब्रेन अब उससे तो सेंस भेजिए, तो ब्रेन आपको बताएगा मीठा है। इफ इट हैज सम एसिडिक कंटेंट, ब्रेन उसको बताएगा खट्टा है। गेटिंग माय पॉइंट? इट इज आयनिक कंटेंट, मोनोवेलेंट आयन, तो ब्रेन उसको सॉल्टी सा बताना शुरू कर देता है। बहुत सारे टेस्ट तो हमें पता ही नहीं, हम उसको याद ही कर लेते हैं। यू जस्ट टेल मी, हर्षल, रोटी का क्या टेस्ट है? मैम कोई टेस्ट तो नहीं है वैसे कोई पर्टिकुलर। हाँ, तो कैसे लर्न कर लिया कि भी रोटी ऐसी होती है? ट्रेन है ना, बस वो खा खा के वो आपको, कंडीशन हो हाँ, गया। खा के, बिकॉज आपको बादाम का क्या टेस्ट है? रसगुल्ले का टेस्ट मीठा, तो आइसक्रीम भी मीठी, चॉकलेट भी मीठी, बट चॉकलेट चॉकलेट क्यों है, रसगुल्ला रसगुल्ला क्यों है? हाउ यू विल डिफरेंशिएट द टेस्ट? मीठा सेब भी है, मीठा अंगूर भी है, बट हाउ विल यू डिफरेंशिएट कि ये अंगूर और ये आपका सेब है? तो टंग कैन डिटेक्ट 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट मेनली, दैट इज स्वीट, sour, salty and आपका बिटर। ठीक है, अगर आप टॉफी ऐसे वो लॉलीपॉप ऐसे लिख करिएगा तो ज्यादा मजा आता है, सीधा तोड़ के खा लो उतना ज्यादा मजा नहीं आता, तो क्योंकि आपके रिसेप्टर्स वहां ज्यादा है। ऐसा नहीं है, आप ये कहेंगे कि मोर रिसेप्टर्स आर देयर, डोंट से कि पीछे है ही नहीं। तो मोस्ट ऑफ द टेस्ट्स आर ड्यू टू combination of various chemicals एंड ब्रेन उसको परसीव करने के बाद लर्न ही कर लेता है कि भी हाँ ये है बस। वेरियस केमिकल्स, ब्रेन perceives and memorize। आपको बचपन में बनाना खिलाया, मम्मी ने बता दिया ये बनाना होता है, ऐसी टेस्ट होता है। आपने कोक पिया तो आपको पता लग गया कोक है। अब मार्केट ऐसे कितने सारे नट्स होंगे, कितनी सारे फूड्स होंगे जो भी आपने टेस्ट ही नहीं करे, तो जब आप उनको टेस्ट करोगे तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बताओगे, ये खट्टा है, मीठा है, फिक्का सा है, मिक्स सा टेस्ट है। तो मिक्स सा टेस्ट है, बस आप उसको लर्न कर लो। तो अब जब भी वो दोबारा खाओगे तो ब्रेन उसमें वही परसेप्शन गई और वो मेमोरी के बेस पे है। सेम थिंग याद करो, तुमने मुझे पहली बार देखा, दूसरी बार देखा और पहचाना, तो जो पहचाना वर्ड आया वो आपका मेमोरी बेस्ड। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, तो आपने ये जो यूवुला था, यहाँ पे मैं एक पॉइंट आई वाज रिमेम्बरिंग कि ये पॉइंट मुझे लिख लेना चाहिए था यहाँ पे। सो यूवुला ने क्या काम किया? यूवुला क्या करता है? इट स्विंग्स बैक, swings to control, to close internal nares during swallowing। तो जब हम swallow करते हैं, नाक में खाना ना चला जाए तो ये उसको बंद कर लेता है। क्लियर हो गया जी? तो आई थिंक सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वी विल टेक अप फ्रॉम द टीथ वाला पार्ट और रेस्ट पार्ट। तो एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। मैंने शुरू किया था न्यूट्रिशन से। व्हाट इज न्यूट्रिशन? सम टोटल ऑफ ऑल प्रोसेसेस। कौन कौन से प्रोसेस? इंजेस्ट किया, डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, एसिमिलेट किया। ये 4 प्रोसेस है न्यूट्रिशन के। 5वां तो वो था जो हमने नहीं यूज हुआ, वो निकाल दिया, दैट इज इजेशन। तो जो फूड हमारी बॉडी में बल्क बनाते हैं, ड्राई वेट बनाते हैं, हमारे मेजर एनर्जी देते हैं, वो प्रॉक्सिमेट जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिंसिपल जो हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए रिक्वायर्ड है, वो हमारे प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स। यहाँ पे एक लाइन लिखा जाता है इसके लिए कि इनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए, डेफिशिएंसी कैन लीड टू डेफिशिएंसी डिजीजेस। पर मैं इस चीज के साथ बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हूं। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये चाहिए हमें कम क्वांटिटी में, ट्रेस एलिमेंट्स की तरह चाहिए, माइक्रोग्राम्स में चाहिए कम। तो अगर इनकी कमी हो जाए तो हमें डेफिशिएंसी डिजीजेस, स्कर्वी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी, विटामिन बी की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, मिनरल्स की डेफिशिएंसी, तो ये जल्दी दिखती है।
बट हम ये नहीं कह सकते कि जो ये हमारे प्रॉक्सिमेट है इनकी डेफिशिएंसी नहीं होती, क्योंकि एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा होता है डेफिशिएंसी लीड टू डेफिशिएंसी डिजीज। तो व्हाट अबाउट जब प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है, क्वाशियोरकर एंड मरास्मस, वो भी तो डेफिशिएंसी डिजीजेस ही तो हैं, लेकिन फर्क इतना है क्योंकि वो अब हमें चाहिए ज्यादा। फॉर एग्जांपल हमें चाहिए 1 ग्राम प्रोटीन्स अप्रोक्सीमेटली 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। मतलब अगर आप 60 किलो के हो तो आपको आपका नॉर्मल रिक्वायरमेंट 60 मिलीग्राम्स प्रोटीन का है। तो अगर आप 60 की जगह 30 भी खा रहे हो तो आपको डेफिशिएंसी नहीं आएगी। लेकिन अगर वो जो खा ही 5 माइक्रोग्राम रहे हो और उसको अगर वो 2 माइक्रोग्राम आपकी बॉडी में गया तो उसकी डेफिशिएंसी आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही पहले ही उसकी बहुत माइक्रोग्राम्स में है। बट डेफिशिएंसी डिजीजेस दोनों की होती हैं। ओके, डाइजेशन कैन बी इंट्रा और एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा ज्यादा बेटर है क्योंकि हम बड़े फूड पार्टिकल खा सकते हैं। सेल को ज्यादा अपने एंजाइम बाहर फेंकने हैं, फूड को डाइजेस्ट करना है और उसको न्यूट्रिएंट की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेना है। इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होगी, जबकि इंट्रासेलुलर में सारा काम ही खुद अपना एक सेल कर रहा है, इंजेक्शन से लेकर सारे प्रोसेस, इजेशन, डाइजेशन, एवरीथिंग। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो सबसे पहले मैंने ट्रैक्ट में बात करी माउथ लीड्स टू बकल कैविटी। अभी बकल कैविटी के हमने 2 पार्ट्स की हैं, हमने पैलेट करी है, हमने फ्लोर पे टंग किया है। अगर मैं ग्लैंड बोलूं तो आई विल से inside the buccal cavity open salivary gland. Don't say salivary glands are present in the buccal cavity. No, they are present outside the buccal cavity and open into buccal cavity. तो जब हम ग्लैंड्स की बात करेंगे तो फिर हम बकल कैविटी के साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स की बात भी करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो टंग में मैंने डिस्कस किया पैलेट, पेपिली, टेस्ट बड्स और किस तरह के टेस्ट हम करते हैं, टंग किस तरह की स्ट्रक्चर है, वी हैव डिस्कस्ड all that about it. Thank you very much.